Excuse me, sir, I have a doubt. Sir, excuse me, sir. हाँ बेटा. Sir, my roll number is second, so I have to submit to whom, sir? The PPT? You are also collecting, na? Yes, sir, I'm collecting for the last 5 roll numbers. Okay, so who is collecting 1 to 10? Sir, me, Ankush. Okay, sir, I will send Yes, send it to Ankush. You can do one thing, Ankush and others, whoever have got the responsibility of collecting the presentations, they write their name and just write 1 to 10. Like, just for an example, Ankush is getting presentations of roll number 1 to 10. बात पूछनी थी. एक मिनट. Ankush, type Ankush like I am typing here. Okay. Yes, like this. Aniket has written. You all write like this. Where is Ankush? Now we have 1 to 10 Ankush, 10 to 20 Prakhar, 20 to 30 Niyati, and 30 to 34 Aniket. And these children will send their presentations to me. All these presentations together. Okay? सर ये एट मेल और व्हाट्सएप मेल कर देना क्योंकि I don't think WhatsApp में you cannot send this much. Probably the size will be big and so you won't be able to send it on WhatsApp. So it is better make a folder and attach those files, or better send it on Google Drive and just inform me. Send it on the Google Drive in one single folder. Okay? Okay, sir. Is there anyone who can manage Google Drive properly? Is there anyone in the class? No, sir. No. Okay, no problem. Then these 4 children, they will send these 10 presentations to me on Google Drive. I will keep all of them in one single folder. So it will be there with me, the soft copy, okay, of your projects. Now, when we have some extra time, some extra class, in that class we shall have these presentations. Ankush, can you send your Gmail ID? Okay. These 4 children can write their Gmail IDs either here or in the class, in that WhatsApp group of English. So from there, everybody will note down. You can write your email IDs there also. There is a possibility that some of you are not here in the class and they may not have been able to get these IDs from here. So you can type your IDs in the class WhatsApp group also for presentation. That's it. Now, as I said, your presentations will be submitted and presentations will be done in extra class or at some other time. In this time, we can talk about what is left. Okay? Sir? So, yes, beta. Sir, Palak also send his email ID in Gmail. So is she also collecting the file, also PPTs? Just now, it has been told here in the chat box. See, Anike, I'll start from 1. 1 to 10, Ankush. 10 to 20, Prakhar. 20 to 30, Niyati. And 30 to 34, Anike. No Palak. So why everybody is writing their... No. Yes, sir. Sir, it is only there is a confusion. They are confused. Yes, some children are confused. Beta, yes, all of you are not needed to send your email IDs. Only these 4 children to whom the presentations are to be sent will be giving their email IDs. And better, these 4 children will write their email IDs in class WhatsApp group, our English class WhatsApp group. Okay. So from there, everybody can take. Don't write here. Some students were confused and they started writing their IDs. Now let me know what is left. What are we to do?
For Sir, what we only were doing, grammar. what we were doing in the previous class. Sir, we were doing the last. We were Sir, doing we some were supplementary. discussing The comet part 1 and the comet part 2. Yes, Sir, sir. we Comet have part. to do grammar in this. Okay, okay, yes, both the things. Okay, sir. Yes, both the things. We'll discuss about Comet 1 and Comet 2 also, and then we'll go to grammar. Yeah, let us begin with grammar, and at one point of time, we'll talk about Comet 1 and Comet 2 also. Okay, sir. Okay, sir. सर आपने रिमूव कर दी थी सिलेबस में से. Yes, beta. But we shall have a discussion about that, and then at last for annual exam we'll decide. You will get the syllabus. Okay, but what I think is that we should not leave anything. At least we have a little. We should have a little discussion about these lessons also. So Okay, we'll do sir. it afterwards. We are starting with the topic of grammar. So what are the topics of grammar that you are supposed to go through? Sir, the direct and indirect narrations. Okay. Sentence, kinds of sentence. Okay. Yes, So sir. we'll begin with direct and indirect narration, and in this direct and indirect narration we'll deal with all kinds of sentences. Okay. I'll use board in the next class. Let us start here only. Are you aware of tenses? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Good. sir. Good. See, I am able to see only one student. Why not all on my window? Sir, I think you pinned that one. No, I didn't. Now I pinned. It was not pinned. And these are changing. Now it is Vedanti Gurjar. Earlier it was some boy, but not the complete class. Sir, I think you changed the layout. Yes, sir. I'm just checking that. No. Sir, I think your network connection is slow, sir. There is a possibility. Just now I took help of Somdat Bhaiya and he only somehow managed to connect. So there is some problem like that. Okay, fine, leave it. You can all see me, right? Yes, sir. Or you Yes, can't see me. Yes, sir. You can see me. Who says like this? You can't see me. Sir, John Cena. Yes. Okay. See, let us take two names. One is Aniket and one is Chahit. And then the third one is Prakhar. Aniket. Is he not there? No, sir, it's here, but Yes, sir. सब बोल नहीं रहा कुछ. अच्छा ठीक है. Let me take somebody else. Ankush Yadav, can you speak? Yes, sir. Okay. So Ankush Yadav. Sir, there is network issue. Okay, ठीक है, no problem, Aniket. Ankush will say something to Chahit. Ankush. Yes, sir. You say, I want your pen. I want your pen. Who are you saying this to? Chahit. Chahit. Prakhar, have you heard this? Yes, sir. Ankush said something to Chahit. Yes, sir. Are you all able to listen to what he said? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Ankush said something to Chahit, and what did he say? He said, I want your pen. Now, what Prakhar is doing here,
Prakhar also heard this, and Prakhar will tell the class what did Chahit tell to no, not Chahit, Ankush tell to Chahit. Prakhar, you will tell this thing to the class. Okay, sir. Ankush said that Chahit, I want your pen. Okay. Now see, when Prakhar, first of all, Ankush said, I want your pen. There were two pronouns used. One was I and one was your. Am I audible, beta? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Okay, okay. So when Ankush said I, who is he using I for? For himself. Ankush. For himself? For Yes, Ankush sir. only? Yes, sir. Okay, okay. And when Ankush used your, who is he using this your for? For Chahit. For Chahit. Chahit. For Chahit. Your has been used for Chahit, and I has been used for himself. Himself. Ankush used I for himself. When Prakhar tells the same thing, can Prakhar also use I for Ankush? No, sir. No, sir. If No, Prakhar sir. uses I, who will be denoted by this I? Prakhar himself. Prakhar. Prakhar. So who wants pen? Sir, Ankush. Ankush. Ankush wants. So what should Prakhar use for Ankush? So he. He. Okay, okay. Now you understood. So when Chahit, I'm always confused in your names. Ankush said, I want your pen. He was using I for himself. And he was using your for Chahit. Chahit. Now Prakhar, when Prakhar says the same thing, Prakhar is telling this to us, to the class. Okay. Prakhar is telling all this to the class. And what is he telling? कि भाई अंकुश ने चाहित से ऐसा ऐसा बोला, यही बता रहा है ना वो? Yes, sir. तो जहां पे अंकुश ने आई बोला था, प्रखर को क्या करना पड़ेगा? Sir, he. Yes, sir. और जहां पे अंकुश ने चाहित के लिए योर यूज किया था, वहां पे प्रखर को क्या यूज करना पड़ेगा जब वो बात आपको से कर रहा है? Sir, Chahit या फिर his. चाहित बोलना पड़ेगा, और या फिर अगर नाम नहीं मेंशन करता है तो प्रोनाउन कौन सा यूज करेगा? Sir, his. एग्जैक्टली. ठीक है. तो अभी प्रखर आप फिर से बोलो ये बात. Okay, sir. अंकुश मतलब ना सर, इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच? आपको जो समझ में आए बोलो. अभी मैं आप ज्यादा मैं जा ही नहीं रहा हूँ. जो समझ में आए बोल दो आप. Ankush said that he want Chahit's pen. ओके. चाहित पेन की बजाय आप बोल दो कि अंकित said to या told चाहित, है ना? और फिर आगे अभी हम डिटेल्स में बाद में जाएंगे, जो दैट वगैरह जो यूज हो रहा है बीच में. उसके बाद आप क्या बोलोगे? दैट ही wanted his pen. ऐसा बोलोगे आप? Yes, sir. Will you say like this? Yes, sir. He wanted his pen, because you are telling this to the class, to other students of your class. Yes, sir. अभी हम इसके डिटेल्स में इसको प्रॉपर्ली स्टडी करने में तो बाद में जाएंगे. पहले मैं पूरी क्लास के साथ कुछ बात करता हूँ. कैन एनीवन टेल मी, ये जो पूरी बातचीत हो रही है इसमें हु इज अंकुश? What role is Ankush playing here? First person. The subject. No, not subject, not subject. First person. The first person. अरे रुको.
थोड़ा सा मैं फिर से पूछता हूँ आपसे, ये यहाँ पे कुछ चल रहा है, ठीक है, बोल कौन रहा है? अंकुश। स्पीकर हाँ, किसको बोल रहा है? चाहित और चाहित आपको आपको कौन बता रहा है? प्रखर प्रखर। अब मुझे बताओ प्रखर। अंकुश, अंकुश कौन है? स्पीकर स्पीकर Speaker. Exactly. Yes. Now you got it. अंकुश is speaker. चाहित कौन है? ऑडियंस ऑडियंस Yes, Listener. audience. Listener. लिसनर Listener. ठीक है, अंकुश इज द स्पीकर हियर, चाहित इज द लिसनर हियर। तो फिर ये प्रखर कौन है? The third person. वो छोड़ दो अभी, आप अभी अपन इन्हीं टर्म्स में बात करते हैं कि वो स्पीकर है, वो लिसनर है। The narrator. नरेटर कौन बोला? मैं। कौन सब- बोला पहले? हाँ, उसके बाद कौन बोला? अंकुश वेरी गुड, बोथ ऑफ यू। प्रखर कौन है? Sir, narrator. नरेटर Narrator. नरेटर, वो नरेट कर रहा है, ठीक है। अभी पूरी कहानी समझ में आ गई आप लोगों को? यस Yes, sir. आ गई Yes, sir. कि नरेशन क्या होता है? Yes, sir. नरेशन ये यस होता है, Yes, sir. हाँ, ये होता है कि वहां पे किसी एक स्पीकर ने किसी से कुछ बोला, जिससे बोला वो लिसनर है ना। तो स्पीकर सेज समथिंग टू द लिसनर, ओके, इतना हो गया। वहां पे somebody may be present and that somebody goes and tells what the speaker told the listener to someone else. नरेटर क्या करता है? वो किसी और के पास जाता है और जो कुछ स्पीकर ने लिसनर से बोला था वो उस किसी और को जाके बताता है, ठीक है, राइट? Yes, sir. यस सर तो बताना जो होता है वो बताना ही होता है, टेलिंग और नरेटिंग। टू टेल और टू नरेट, कुछ बताना या कुछ सुनाना, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि इस कंडीशन में जो जो पूरी सिचुएशन अभी हम लोगों ने देखी थी, इसमें प्रखर वॉज द नरेटर। Yes, sir. तो जो स्पीकर करता है उसको क्या कहते हैं? दैट ही स्पीक्स। Yes, sir. यस सर जो लिसनर करता है वो हम उसको क्या कहते हैं? दैट ही Listen. लिसनिंग Listening. लिसन। और जो नरेटर करता है उसको क्या कहते हैं? दैट ही Narrate. 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 नरेट्स। और ये नरेट करना इज अ वर्ब फॉर्म, इसी का नाउन फॉर्म है। ये जो प्रोसेस Narration. ऑफ नरेटिंग है, प्रोसेस ऑफ नरेटिंग है, वो क्या है? नरेशन। Yes, तो sir. जो कुछ प्रखर ने किया वो क्या था? Narration. नरेशन प्रखर ने जो किया वो था नरेशन। अभी आपको Narration. नरेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई कि Yes, नरेशन sir. क्या होता है? यस सर यस सर नरेशन समझ में आ Yes, गया? sir. Yes. ठीक है। अब ये जो नरेशन है, इट कैन बी डन इन टू वेज। वन वे इज द वे प्रखर डिड एट फर्स्ट। प्रखर ने सबसे पहले किया था, क्या किया था? प्रखर ने स्पीकर के वर्ड्स को एज इट इज नरेट कर दिया था। क्या किया था? As it is. As it is. एज इट इज। अच्छा, प्रखर ने दूसरे केस में क्या किया? उन वर्ड्स को एज इट इज नरेट नहीं किया, उसने उन वर्ड्स को थोड़ा चेंज किया था। Yes. यस सर चेंज कैसे किया था? अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि वहां पे जो प्रोनाउंस यूज हुए थे वो तो स्पीकर ने यूज किए थे। तो स्पीकर जिसके लिए जो प्रोनाउन यूज करेगा उसी के लिए नरेटर भी वही प्रोनाउन यूज कैसे कर सकता है? Yes, sir. कुछ चेंजेस होते हैं। Yes, sir. यस सर तो जब नरेटर स्पीकर के वर्ड्स को एज इट इज कन्वे कर देता है, कम्युनिकेट कर देता है, नरेट कर देता है एज इट इज,
वो तो होता है डायरेक्ट नरेशन, ठीक है। और जब वो उनको अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि नाउ नरेटर इज द स्पीकर, उसमें कुछ इम्प्रोवाइज करता है, कुछ चेंजेस करता है और फिर बताता है, दैट इज इनडायरेक्ट नरेशन। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. डायरेक्ट नरेशन में क्या किया, उन वर्ड्स को डायरेक्टली लाके यहाँ पे ऐसा का ऐसा फेंक दिया आपके ऊपर, ये उसके वर्ड्स थे, ये लो, ठीक है। और इनडायरेक्ट नरेशन में उसको चेंज किया। अब आप देखो कि स्पीकिंग में, इन द स्पोकन लैंग्वेज, अगर आप डायरेक्ट नरेशन में कहीं बात कर लेते हो तो कंफ्यूजन हो जाते हैं, Yes, sir. है ना। तो वाइल स्पीकिंग वी प्रेफर using indirect narration, but in writing you can use any direct narration भी आप यूज कर सकते हो और इनडायरेक्ट नरेशन भी यूज कर सकते हो। पता कैसे चलेगा? तो जो डायरेक्ट नरेशन है, जो स्टेटमेंट है, जो किसी और का स्टेटमेंट है, उसको आप किस में लिखते हो? किस में लिखते हो? Direct narration. कोटेशन मार्क्स में। Yes, sir. कोटेशन मार्क्स, जो इन्वर्टेड कॉमास आप लगाते हो ना, सेट ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, Yes, sir. वो कोटेशन मार्क होता है। वो तो उन इन्वर्टेड कॉमास के बीच में, कोटेशन मार्क के बीच में जो चीज लिखी है, उसका मतलब ये है कि ये वर्ड्स जो हैं, ये वर्ड्स मेरे नहीं हैं, ये वर्ड्स उस स्पीकर के हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो राइटिंग में हम दोनों फॉर्म में, दोनों तरीके का नरेशन यूज करते हैं। स्पीकिंग में इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी यूज इनडायरेक्ट नरेशन। इज दिस मच क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Okay. If you don't have any confusion here, we can talk further. Okay, sir. ठीक है। अब गड़बड़ कहाँ हो सकती है? गड़बड़ कहाँ हो सकती है? अंकुश टेल्स शहीद, है ना। अभी हम बिल्कुल रूल्स में नहीं जा रहे हैं, ओके। हम रूल्स में नहीं जा रहे हैं, अभी हमें कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर अंकुश शाहिद से ये बोलता है कि आई शैल कम टू योर होम फॉर लंच टुमारो, हैव यू हर्ड इट? Yes, sir. Yes, I sir. shall come to your home for lunch tomorrow. Yes, sir. ठीक है, they are good friends. Shahid said, okay, no problem. You are welcome. Now, what does Shahid need to do? Shahid simply needs to convey this to his mother, because ultimately Yes. his mother is going to make all the arrangements for his lunch. Yes, sir. ठीक है, तो शहीद जाएगा किसके पास में? अपनी मदर के मम्मा पास। के पास में, एंड ही विल टेल हर, और अरेंजमेंट हो जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो अभी देखो इसने क्या बोला, अंकुश ने, आई शैल कम टू योर होम फॉर लंच टुमारो। अब शाहिद ने घर जाके अपनी मम्मा को क्या बताया? अब इसको पता है कि प्रोनाउंस तो चेंज करना चाहिए, इतनी अकल है शाहिद को, तो शाहिद ने चेंज कर दिया, दैट ही वुड कम टू आवर होम फॉर लंच टुमारो। ऐसे ही बोलेगा ना? Yes, sir. ठीक है, तो मम्मा सेड ओके, एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, फाइन। अब आप ये सोचो कि अगर अंकुश ने शाहिद को आज ये बात बोली थी, आज ये बात बोली थी, है ना, ऑन 28th कि आई विल कम टू योर होम टुमारो, तो ये टुमारो कब है? 29th। 29th. तो अगर शाहिद अपनी मम्मा को आज जाके बता देता है और वो ये बोलता है ही वुड कम टू आवर होम फॉर लंच टुमारो, तो टुमारो इज 29th। Yes, sir. अगर शाहिद आज भूल जाता है, आज भूल जाता है, कल सुबह शाहिद को याद आता है,
कि I need to tell this to my mother, and then he tells his mother the same thing कि my friend Ankush told me that he would come to our home for lunch tomorrow. And his mother said, okay, no problem, we'll make arrangement. ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. What will his mother understand? So that's That the he will time come कल आने on वाला है. 30th. Ankush is coming. He will come 30th. tomorrow. Tomorrow, है ना? 30th को. So mother is relaxed today and she will make all the arrangements next day. There is no problem at all. Yes, sir. Yes, sir. But ये अंकुश तो आज ही पहुंच गया, मतलब कल 29th को. अभी इसमें अंकुश की कोई गलती है? No, sir. No, sir. No, कोई गलती sir. नहीं, अंकुश ने बोला था, No, sir. है ना? अच्छा, Shahid's mother, is it her fault? No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. है ना? अब लंच टाइम पे ये पहुंच गया, अब आया है तो मना तो करेंगे नहीं. देन व्हाट विल हिज मदर डू? जो चाहिद का शेयर है जितना, दैट शी विल गिव टू Ankush. Ankush. और चाहिद गया. चाहिद किसी और के घर जाएगा. अब चाहिद को किसी और के घर जाना पड़ेगा लंच करने के लिए. गलती कहाँ हुई? Sir. Narrate Sir, अपनी mother को बताया. narrate करते हुए. Yes, I sir. forgot to tell. Yes, sir. आपको वर्ड्स, जैसे हमने बात करी कि हम प्रोनाउंस चेंज करते हैं, है ना? प्रोनाउंस उसने चेंज कर दिए, लेकिन प्रोनाउंस के अलावा हमें ये भी चेंज करना पड़ेगा. अब ये कैसे चेंज होगा? He told yesterday that he would come the next day. नेक्स्ट डे मतलब जब उसने बोला था उसके नेक्स्ट डे या द डे आफ्टर. हमें क्या बोलना पड़ेगा टुमारो की प्लेस पे? The next डे the या next फिर द डे आफ्टर. तो उसमें क्लैरिटी हो जाएगी. टुमारो नहीं रख सकते आप, टुडे नहीं रख सकते आप. टुडे अगर होगा तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? that night. दैट डे. अरे डे को नाइट बना रहा है. Sorry, sir. Today will become that day. Similarly, tomorrow will become the next day या the day after. तो अब मुझे बताओ जल्दी से कि yesterday will become The day before. Previous day. the previous day. The day before या फिर the day the previous day. Very good. ये भी क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक. अच्छा, अंकुश ने चाहिद से बोला कि इन्फॉर्म प्रखर that I'll wait for him here tomorrow. ठीक है? What did Ankush say? Inform Prakhar that I'll wait for him tomorrow here. Yeah, I'll wait for him here tomorrow. अभी चाहिद ने सब सीख लिया. आई का ही कर लिया, टुमारो का नेक्स्ट डे कर लिया, सब सीख लिया उसने. तब चाहिद ने उसको प्रखर को जाके क्या बताया कि ही विल वेट. वुड होता है, लेकिन मैं अभी क्योंकि अभी हमने टेंसेस की बात नहीं करी इसलिए मैं वो रूल्स में नहीं जा रहा हूँ अभी, है ना. हम जस्ट ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं, Yes, sir. है ना. वेट फॉर यू Next day. हियर द नेक्स्ट डे. यही होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. अब अंकुश said this thing to Chahid when he was standing in the school playground. What did he say? I'll wait for him here the next day, tomorrow. और वहां जाके उसने बता दिया कि he'll wait for you here the next day. सब कुछ सही सही कर दिया उसने, लेकिन ये उसने कहाँ जाके बताया?
सब प्लेग्राउंड में। प्रखर के घर के सामने वाले प्लेग्राउंड में। जब उसने उसको इन्फॉर्म किया तब कहाँ खड़े थे दोनों? सब प्लेग्राउंड में। प्लेग्राउंड में। कौन से प्लेग्राउंड में? घर के सामने वाले। प्रखर के घर के सामने। ठीक है, उसने बोला कि he'll wait for you here the next day। अब प्रखर कहाँ जाएगा उससे मिलने के लिए नेक्स्ट डे? अपने घर के सामने वाले उसने प्लेग्राउंड। बोला था हियर मतलब जहां खड़े हो गए, उसने बताया वहां पे। यस सर। तो प्रखर वहां जाएगा ना उसका वेट करने के लिए, है ना? यस यस सर। सर। और अंकुश कहाँ वेट कर रहा है उसका? स्कूल के प्लेग्राउंड। क्योंकि अंकुश ने स्कूल प्लेग्राउंड में खड़े होकर बोला था आई विल वेट हियर। ठीक है, तो अंकुश इज वेटिंग इन द स्कूल प्लेग्राउंड, ही इज वेटिंग इन द प्लेग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। दोनों गए, दूसरे दिन दोनों की लड़ाई हो गई, तू नहीं आया तू नहीं आया। ठीक है, गलती किसकी है? अंकुश। अंकुश की गलती है? सच्चाहित है। चहित। अंकुश की क्या गलती है? अंकुश ने बोला था आई वेट हियर। सर वो कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा सा। तो गलती किसकी है? चाहिद की। चहित। तो दोनों मिलके किसको पीटेंगे? सच्चाहित। चहित को। मुझे तो फिर क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? सर उसको हियर की जगह उस प्लेस का नाम लेना चाहिए था। यस, या तो वो बोलता देयर, तो वो पूछ लेता वेयर। हियर shouldn't have been here। उसको बोलना चाहिए था देयर, तो वो पूछ लेता ना कि देयर मतलब क्या, वेयर, तो बता देता उसे, या फिर वो स्पेसिफाई कर देता कि वेयर। बट हियर इज रॉन्ग और नॉट? यस। सर रॉन्ग। रॉन्ग। तो फिर हियर का क्या होना चाहिए था? देयर। सिमिलरली कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे नाउ। नाउ तो अभी के लिए हो गया, आप 2 दिन बाद बता रहे हो तब भी नाउ बोलोगे तो क्या? देन बोलोगे। देन। क्लियर हो रहा है ना आपको धीरे धीरे? यस सर। कि नरेशन Yes, में sir. होता क्या है नरेशन में? एक स्पीकर होता है, वो लिसनर से कुछ बताता है, और एक नरेटर होता है जो किसी और को जाके वो चीज बताता है जो स्पीकर ने लिसनर से बोली होती है। तब उसको उसके अंदर कुछ मैनिपुलेशंस करने पड़ते हैं, और वो किसके अकॉर्डिंग करने पड़ते हैं? टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग, और पर्सन, क्योंकि अब वो खुद बोल रहा है, नाउ ही इज द स्पीकर, तो अपने अकॉर्डिंग करनी पड़ेंगे उसको चेंजेस। आपको समझ में आ गई पूरी बात? यस सर। अगर आपको ये बेसिक समझ में आया है तो आपको रूल्स भी समझ में आ जाएंगे। आपने सिर्फ रूल्स याद करके रखे हैं, है ना, तो आप जब यूज करने जाओगे तब फिर वो रूल्स में कंफ्यूजन हो जाएगा। आपको ये बेसिक क्लियर हो गया सबको? यस यस सर। सर। यस सर। में होता क्या है? ठीक है, हम ऐसे कुछ 1-2 एग्जांपल्स और ले लेंगे, उसके बाद व्हाट आई एक्सपेक्ट दैट यू विल गो थ्रू द रूल्स इन योर ग्रामर बुक और ऑन एनी वेबसाइट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपके साथ बात करूंगा, तो व्हेन आई स्टार्ट टेलिंग द रूल्स एंड ऑल दीज थिंग्स, देन आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू बी स्पीकिंग बिफोर मी। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे डिस्टर्ब करो नेक्स्ट क्लास में। मैं जब कुछ बताने की कोशिश करूं तो आपको पहले से पता होना चाहिए, अगर आप पढ़ के आओगे तो तब आपको भी मजा आएगा और मुझे भी आएगा। यस सर। और क्योंकि आपको ये बेसिक आइडिया है नरेशन का, ये समझ में आ गया है, तो आपको रूल्स भी आ जाएंगे। ओके, यस सर। ठीक है। अभी अंकुश विल टेल चाहित, अंकुश बोलना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? यस एंड सर। देन प्रखर विल नरेट। अंकुश आप बोलोगे, ठीक है, झूठ भी बोल सकते हो, आप बोलो आई लाइक दिस इंग्लिश क्लास वेरी मच। I like this English class very much. ठीक है, ये आपने किससे बोला? चहित से।
शाहिद से बोला, ठीक है। प्रखर, टेल दिस टू द क्लास। Sir, Ankush said that he liked that English class. वेरी मच भी था क्या? Yes, sir, very much. ओके। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? इसने जहां पे वो बोल रहा था ना आई, उसने क्या कर दिया? ही। अच्छा, उसने एक अच्छा काम और कर दिया कि लाइक का लाइक कर दिया, दैट विल टॉक आफ्टरवर्ड्स। बट व्हाट डिड ही डू? ही मेड ही ऑफ आई, दैट वाज गुड, करेक्ट। उसने एक काम और किया, मैंने इंटेंशनली एक टर्म यूज करी थी, दिस इंग्लिश क्लास। उसने क्या बोला? that English class. If this will become that, it will also become that. Yes, sir. इतना भी समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक काम और करते हैं। बहुत देर से अंकुश बोल रहा है, चाहिद सुन रहा है, और प्रखर नरेट कर रहा है। अभी चाहिद बोलेगा, अंकुश सुनेगा, और नरेट कौन करेगा? Yes, sir. नरेट कौन करेगा? प्रखर. नहीं, प्रखर नहीं, अब कोई और नरेट करेगा। Who will narrate? जल्दी बताओ यार। सर मैं ही कर दूं आप अंकुश? बता दीजिए। अच्छा, नो वन इज विलिंग? सर मैं कर दूं अंकुश? ठीक है, अंकुश करेगा। चलो एक नया केस आ जाएगा इसमें। चाहिद, टेल अंकुश। Yes, sir. You always help me a lot. You always help me a lot. चल अंकुश, नरेट कर। Yes, sir. Shahid said that. अरे अंकुश has left. Yes, sir. नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई होगी। चल प्रखर, जल्दी बता। सर वर्ड रिपीट कर दीजिए एक बार सेंटेंस। सर मैं आए? बोलो क्या मैं. हाँ नियति। Shahid said that. Sir, what is the sentence? सर मैं आए? You always help me a lot. सर मेरा नेट चला गया था सर, वापस बोलूं? No problem, no problem. Niyati is telling first. Then I'll call Shahid Ankush. said that Prakhar always helped him a lot. प्रखर की तो बात ही नहीं हुई थी यहाँ, अंकुश की अंकुश की भी थी. बात। चलो, don't tell name, say he. Okay, He sir. always helped him a lot. हाँ, but when Ankush will say, what will he say? I. I. अंकुश बोल। Shahid said that I always help him a lot. अभी मुझे लग रहा है कि सबको समझ में आ गया। यस सर। गया ना? Yes, sir. अब आज आप लोग क्या करोगे कि थोड़ा इसको स्टडी करोगे और कुछ सेंटेंसेस ढूंढोगे आप इस तरीके से, वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे और आपकी ग्रामर बुक में भी मिल जाएंगे। ट्राई टू डू दोस, और उसमें जो प्रॉब्लम आएगी मुझे बताना नेक्स्ट क्लास में, और फिर हम लोग एक बार क्विकली इसके सारे रूल्स देख लेंगे, ठीक है? Yes, यस sir. सर। ओके बेटा। सर, और हम लोगों ने आज शाम को प्रेजेंटेशन भी बना. हाँ, आज शाम को अपन डिसाइड करेंगे कि कब हम लोग क्लास अरेंज करने वाले हैं, ठीक है? तो Yes, sir. उसमें डिसाइड कर लेंगे अपन अपने ग्रुप में, वहाँ अच्छा इंटरेक्शन हो जाता है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस सर। नाउ यू कैन लीव द क्लास। Thank you, sir. Thank you, sir. Sairam, sir.